Okay, we are in 2022, 2022 में हम हैं। a year of fruitfulness, ये फलवंत होने का साल है। a year where the fruit will not stop. ऐसा साल जहाँ पर फल रुकेगा नहीं। Can I hear an amen then? Okay. John 15 verse 8 says, योना 15 और 8 में लिखा है, if you make plenty of fruit, अगर तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे it will show how great and good your Father is. तो वो दिखाएगा कि कितने महान और कितने अच्छे तुम्हारे पिता हैं। Yeah, and I want to tell you और मैं कहना चाहता हूँ and declare with all my heart, और घोषणा करना चाहता हूँ पूरे दिल God से, wants you to have plenty of fruit in your life. प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में बहुत ज्यादा फल हो। Why? क्यों? Because it will just show that how good and how great your Father is. क्योंकि वो फल दिखाएगा कि कितने महान और कितने भले आपके पिता हैं। And it will be also a sign that you are a disciple of Jesus. और वो एक चिन्ह भी होगा कि आप यीशु के शिष्य हो। Last Sunday I was talking to you about Joseph. गए संडे में आपको यूसुफ के बारे में बता रहा था Yeah, and I told you three things. और 3 बातें मैंने कही थी। Here is Joseph standing before his father. तो यूसुफ अपने पिता के सामने खड़ा है। The first thing I told you, पहली बात, yeah, let me put that scripture for you so you will be blessed by it. Yeah, Genesis 49 verse 22. उत्पत्ति 49 में 22, The father looks at the son and he says like this. पिता बेटे को देखकर ऐसे कहते हैं, This is not a prophecy. ये भविष्यवाणी नहीं है, This is his past and his present. ये उसका अतीत और वर्तमान के बारे में है। And he says something. और वो कुछ कहते हैं। Number one, he says, पहला, Joseph, यूसुफ you're a fruitful tree. तुम फलवंत पेड़ हो। You know what should your destiny be? पता है आपकी मंजिल क्या होनी चाहिए? Fruitful tree. फलवंत पेड़। Number two, he says, दूसरी बात, you are a fruitful tree by the stream. तुम एक ऐसे फलवंत पेड़ हो जो झरने के बाजू में लगाए And गए we हो। know the stream is the Lord और हम himself. जानते हैं कि वो जो झरना है वो प्रभु खुद है। And number three, he said, और तीसरी बात, I like that. मुझे अच्छा He लगता है। said, you climb over the wall. वो कहते हैं तुम वो दीवार के ऊपर से जाते हो। I spoke about all this last Sunday. Number four now. गए संडे मैंने ये सब कहा था। चौथी बात, Number four. Okay. Now when I was a young boy, जब मैं जवान लड़का था, yeah, still I'm young. अभी भी हूँ। Yeah. Okay. Yeah. So when I used to come from the school, स्कूल से जब आता था, yeah, we had a habit. एक आदत थी। Yeah, we want to eat, imli and what you say, and curry. Yeah, right. इमली और कैरी खाने की Yeah. आदत। So we will look for a tree with that. तो ऐसा पेड़ ढूंढते थे जिसके ऊपर ये लगाए। And the moment we see, we'll throw stones so that I'll get it. और जब दिखता था तो पत्थर मारते थे ताकि मिले। Okay, now why I'm telling you this? मैं क्यों कह रहा हूँ? Every tree which has a fruit हर एक पेड़ जिसके ऊपर फल होता है, will have to meet not one stone, many stones. उसको बहुत सारे पत्थरों का सामना करना पड़ता है। You know, you have a dream in your mind, in your head, which says, I should not have any problem. आपके मन में ऐसा सपना है कि मुझे कोई भी समस्या होनी ही नहीं चाहिए। There is nobody who can say, I cannot have pain. ऐसा कोई भी ऐसा कह नहीं सकता कि मेरे जीवन में कोई दर्द जैसा कुछ है ही नहीं। No. You will have fruit, आपके पास फल होगा, लेकिन पत्थर आने वाला है. Otherwise, decide like this, you be a tree without fruit. वरना आप निर्णय ले लो कि मैं ऐसा पेड़ रहूंगा जिसमें कोई फल ही नहीं चाहिए मुझे। Which fool, which wise man will hit a tree without fruit? कौन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे पेड़ के ऊपर पत्थर मारेगा We जिसके were ऊपर फल small ही नहीं है? children. हम छोटे बच्चे। हम छोटे बच्चे थे, तभी भी हमको पता है पत्थर कहाँ मारना है. Yes. Yeah, even a small child knows where to hit the stone. छोटा बच्चा भी जानता है कि पत्थर कहाँ मारना है। He will never hit a stone on a tree which is empty. ऐसा खाली पेड़ के ऊपर कोई पत्थर नहीं मारता। Don't make all this prayer. प्रभु, मुझे ना कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाला. ऐसी प्रार्थना मत करो। तकलीफ आएगा, तकलीफ में डरना नहीं है. क्योंकि जब वहां से when stone comes from there, we will also hit some stone. Don't worry. वहां से जब पत्थर आएंगे तो हम भी पत्थर मारेंगे, चिंता मत करो। तो मैं नहीं बोल रहा, सब लोग बोल रहे कौन सा पत्थर है, जल्दी बोलो. Don't worry, वहां पर आएंगे हम लोग आज. Joseph is fully loaded with fruit. तो यूसुफ पूरी तरह फल से भरा हुआ है। What happened? क्या हुआ? Genesis 49 and verse 23. उत्पत्ति 49 में 23। Yeah, the father is saying his enemies will attack him with arrows. उसके पिता कह रहे हैं कि उसके दुश्मन उसको तीर से वार करेंगे। जब फल होता है तीर का वार होने वाला है. When there is fruit, there will be arrows which are going to fly on you. जब फल होते हैं ना तो तीर जरूर आकर लगने वाले हैं। So this year, तो ये साल with your fruitfulness, आपके फलवंत होने के साथ साथ some arrows are going to fly. कुछ तीर भी उड़ने वाले हैं। So when it flies, don't say,
अरे बाप रे, तो what's जब happening? तीर आ रहे हैं तो ऐसे मत कहो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। Don't be surprised. तो अचंभित मत होना। Yeah, you want to write that word, you can write. Don't be surprised. लिख लो, अचंभित मत होना। Yeah, क्योंकि तीर आने ही वाला है. It will come. वो आएंगे, But don't worry. चिंता मत करो। When you talk about arrows, जब हम तीर की बात करते हैं, Bible talks about it. बाइबल में भी तीर के बारे में Psalm लिखा है। 91 verse 5. भजन संहिता 91 में 5 Bible says the enemy's arrows will come in the daytime. बाइबल में लिखा है कि जो दुश्मन है उसके तीर दिन के समय भी आएंगे। बाजू वाले बोलना आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है. Can I hear an amen there? So don't be surprised. तो अचंभित मत होना। Yeah, Ephesians 6:16. एफिसियों 6 और 16 What does it say? क्या लिखा है? Fiery darts the enemy will shoot at you. शत्रु आग से भरे तीर तुम्हारी ओर भेजेगा। Yeah, fiery arrows will come. आग से भरे तीर आएंगे। Yeah. Today I want to quickly tell you five arrows which were shot at him. तो मैं तुरंत आपको 5 ऐसे तीर जो यूसुफ के ऊपर मारे गए थे मैं आपको बताता हूँ And उसके बारे then में। we will see only one arrow which Yusuf shot. फिर एक ही तीर जिसका उपयोग यूसुफ ने किया उसको हम देखेंगे। And then I will tell you which arrow you should use this year. और फिर मैं आपको बताऊंगा ये साल आपने कौन से तीर का इस्तेमाल करना If है। you use that arrow, I want to guarantee you, no power of darkness can stand against you. अगर वो तीर का इस्तेमाल आप करोगे तो मैं कहना चाहता हूँ कोई भी अंधकार की शक्ति आपके विरोध में नहीं खड़ी रह सकती। Number one. पहला तीर, The first arrow. पहला तीर Yeah, Genesis 37 verse 4. उत्पत्ति 37 में 4 But his brothers hated Joseph. उसके भाई यूसुफ से नफरत करते थे। Yeah, that's the first arrow. वो पहला तीर है। Okay, can I ask you a question? सवाल पूछ सकता हूँ? Have you gone through a time where people hate you without a reason? क्या आप जीवन में ऐसे समय से गुजरे हो जहाँ पे बिना कोई कारण लोग नफरत करते थे आपसे? What was that? क्या था वो? It was an arrow. वो एक तीर था। When a person hates you, there is no love there. जब कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है तो वहाँ पे कोई प्रेम नहीं होता है। If you hate somebody, अगर आप किसी से नफरत करते हो what happened? तो क्या हुआ? Love has gone. प्रेम बाहर निकल गया है। Have I gone through this season where people just hate me without a reason? क्या मैं ऐसे मौसम से गुजरा हूँ जहाँ पे बिना कोई कारण लोग मुझसे नफरत करते थे? Yeah. बिल्कुल। Okay. Did Joseph do anything to be hated? क्या यूसुफ ने ऐसा कुछ किया कि लोग उसे नफरत करे? No. नहीं। You know why they hated? पता है वो क्यों नफरत करते Because थे? the father loved him more than all of them. क्योंकि जो पिता थे यूसुफ से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। जब फल आता है ना तुझे लोग तीर मारने वाले हैं. Okay, let me say this. Not everybody will like you. सब लोग आपको पसंद नहीं करने वाले। Even in your own family. आपके परिवार में भी। Not everybody will like you in your workplace. आपके काम की जगह सब लोग आपको पसंद नहीं करने वाले। But thank God, धन्यवाद हो प्रभु का। you have a friend who loves you. आपके पास ऐसा दोस्त है जो आपसे बहुत प्रेम His करता name है। is Jesus. नाम है यीशु। Hatred will lead you to murder. इतना याद रखना, नफरत करना हत्या की ओर लेके जाएगा। Yeah, 1 John chapter 3 verse 15. पहला यूहन्ना 3 में 15। Okay. Hatred will lead you to murder. नफरत करना हत्या की ओर लेके जाता है। Yeah, you don't need to kill a person physically. आपको शारीरिक रूप से किसी को मारने की जरूरत भी You नहीं can पड़ती। kill a person in your mind. आपके मन में किसी को मार सकते हो। जैसे हम लोग किसी के साथ व्यभिचार कर सकते हैं हमारे मन में सोचने के द्वारा, वैसा ही एक आदमी का हम हत्या कर सकते हैं उसके साथ क्या करते हुए? नफरत करते हुए हमारे मन के अंदर. यस Said an amen. You can kill a person there. आप आपके मन में किसी को मार भी सकते हो। All right. Now, praise God. Maybe you have done it to somebody like that. हो सकता है आपने किसी के साथ ऐसा किया है Or maybe somebody has done it for you. या किसी ने आपके साथ ऐसा किया है। If you have done it to somebody, I want to tell you, from today onwards, we have to stop it. अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया है तो मैं कहना चाहता हूँ आज से आगे इसे रोक दो। This arrow should not continue in this year, in your life. ये साल में ये तीर तुमने नहीं चलाना है। No, you cannot use this arrow at all. This arrow has to be completely thrown out of Ye- your quiver. ये नफरत का तीर तुम बिल्कुल नहीं चला सकते हो, उसको फेंक दो। Or maybe people have attacked you with this arrow. और हो सकता है लोगों ने आपके ऊपर आक्रमण किया है ये तीर के साथ। But I have good news for you. लेकिन मेरे पास अच्छी खबर है I आपके know लिए। a healer मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ who जो can चंगाई heal your देते हैं, wounds. जो आपके घाव को चंगाई दे सकते हैं। The wounds of hatred can be healed in the mighty name of ये Jesus. नफरत के जो जख्म है उसको चंगाई मिल सकती है। Okay, so what should I do, Pastor? तो मैंने क्या करना है पास्टर? Ephesians 5:2.
एफिसियों 5 में 2। What should I do this year? ये साल मैंने क्या करना है? Live a life filled with love. ऐसा जीवन जियो जो प्रेम से भरा हुआ है। Can I define love to you? क्या मैं प्रेम की परिभाषा बताऊं आपको? सामने को फायदा होता है, अगर तुझे नुकसान हुआ तो भी चलेगा, सामने वाले को फायदा होना है। Do you know people came to catch Jesus? क्या आप जानते हो लोग यीशु को पकड़ने आए? Peter removed the sword, पतरस ने तलवार निकाली, cut the ear. एक का कान काट दिया। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? He healed that man. उस व्यक्ति को चंगाई दे दी। And then what did he say? और फिर क्या कहा? Peter, पतरस, don't use this. वो तलवार का इस्तेमाल मत करो। If you use it, अगर करोगे you will die with it. तुम मर जाओगे उसके साथ ही। The weapon of hatred has to be burned in our lives. ये जो नफरत का जो हथियार है हमारे जीवन में, उसका नाश होना है। So what weapon should you use? तो कौन से हथियार का इस्तेमाल करना है? Love. प्रेम। ये साल अगर तेरे लिए तुझे थोड़ा घाटा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वाले को प्रॉफिट होने दो। आमेन। Come on. What is love? प्रेम है क्या? Now I can tell you stories मैं आपको कहानियां बता सकता हूँ of how people have taken things from my life. कैसे मेरे जीवन से लोगों ने चीजों को निकाल लिया है। And I never said no, this is mine. No. मैंने ऐसे पकड़ के कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं ये मेरा ही है। Take it. लेके जाओ, लेके जाओ। You know, Jesus taught the Israelites when the Roman people were dominating. यीशु ने इजराइल के लोगों को ये सिखाया जब जो रोमी लोग थे वो राज कर He रहे said, थे। if a soldier tells you to carry his backpack for 1 kilometer, carry it for 2 kilometers. यीशु ने कहा अगर कोई रोमी सैनिक तुम्हें कहता है कि उसकी बैग उठाकर 1 किलोमीटर चलो तो तुम 2 किलोमीटर लेकर जाओ उसे। You do what I am telling you. I am telling you, no demon can stand in front of you. अब करो जो मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह No सकती। demon can stand before कोई you. दुष्ट आत्मा तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह सकती। Number 2, the second arrow. दूसरा तीर। What is the second arrow? दूसरा तीर क्या था? Yeah, Acts 7 verse 9. प्रेरितों के कार्य 7 में 9। And the patriarchs, that means his 10 brothers, जो 10 भाई थे they यूसुफ के, became envious. वो ईर्ष्या करने लगे। Irsha. What is envy? What ये is envy? ईर्ष्या क्या है? Yeah. Envy means you have a deep longing for something which belongs to others. ईर्ष्या का मतलब है बहुत गहरी चाहत किसी और की चीज के लिए। See, if you are not able to celebrate others' victories, others, blessings, I want to tell you, this year also you're going to struggle. अगर दूसरों के विजय या दूसरों के आशीष का उत्सव आप नहीं मना सकते तो मैं कहना चाहता हूँ ये साल भी आप संघर्ष ही करोगे। Yeah. So, it's an arrow. ये तीर है And they shot it at Joseph. और वो तीर से वो लोग ने यूसुफ को मारा And through that they sold him. और उसके द्वारा वो ईर्ष्या के द्वारा उन्होंने बेच दिया यूसुफ को। Envy will make you do things which you should not do. ईर्ष्या आपको ऐसी चीजें करवाएगी जो आपने नहीं करना चाहिए। आपने जो चीज नहीं करना चाहिए वो ईर्ष्या करने लगाएगी आपको। You will lose your close friends. आपके करीबी दोस्तों को खो दोगे, You lose your relatives. आपके रिश्तेदारों को खो दोगे, People who are good, you will lose them. अच्छे लोग जो आपके जीवन में उनको खो दोगे। Because envy will make you do things which you should not do. क्योंकि ईर्ष्या आपको ऐसी चीजें करवाएगी जो आपने नहीं करना चाहिए। So what to do, Pastor? तो क्या करना चाहिए Hebrews पास्टर? 13 verse 5. इब्रानियों 13 में 5। Keep your lives free from the love of money. तुम्हारे जीवन को प्रेम पैसे के प्रेम से खाली रखना। Be satisfied with what you have. तृप्त हो जाओ जो तुम्हारे पास है उसमें। You know, there's a word called contentment in the Bible. बाइबल में ये शब्द है संतुष्टि। हाँ, इसका मतलब जो तेरे पास है ना उससे तो खुश रहे. If you get a salary of 20,000, अगर आपकी तनख्वाह 20,000 है don't look at the man who is getting 25,000. तो जिसको 25 मिल रहा है उसको मत देखो। If you get 50, don't look at the person who gets 1 lakh. अगर 50,000 आपकी तनख्वाह है तो जिसको 1 लाख तनख्वाह है उसको मत देखो। Because if you keep looking at it, अगर उसको देखते रहोगे you're going to have trouble. तो आपको समस्या होने वाली है। So when people are coming on 4-wheeler, I will keep walking. लोग गाड़ी में जब आ रहे हैं तो मैं तो चलते रहता था। So sometimes I look at their car and I say, Lord, if I would have been an engineer, I also would have been driving car, na? तो कभी-कभी उनकी गाड़ी देखकर मेरे मन में आता था अगर मैं इंजीनियर जैसे काम करता तो मेरे पास भी होती गाड़ी। Because all my engineering friends, now they are engineering managers. They have got not 1, 2 cars and 4 BHK houses and all. कि मेरे सारे इंजीनियरिंग फ्रेंड्स सब बहुत उन्नति की है, गाड़ियां हैं, बड़े घर हैं। Yeah. So I told the Lord, I walking, they driving. मैंने कहा प्रभु मैं चल रहा हूँ, ये गाड़ी चला रहे हैं। So the Lord said, प्रभु ने कहा He said, you should learn.
तुमने सीखना है। to look at the good things that I've given you. जो भली चीजें मैंने तुम्हें दी है उसको देखना सीखो। How does a man become satisfied in life? How? कैसे कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है? How? कैसे होता है? He has to learn to count the good things that God has given him. उसे सीखना है, जो भली चीजें प्रभु ने दी है उसको गिनना सीखना है। Otherwise, I'm telling you, वरना मैं कहता I'm हूँ, telling you, envy will make you a slave and make you do things against people which you will regret for later. वरना मैं कहता हूँ ये जो ईर्ष्या है वो आपके ऊपर नियंत्रण करेगी और ऐसी चीजें करवाएगी जो बाद में आपको पछतावा होगा। Yeah. So I tell the Lord, Lord, thank you for these two nice legs which you have given. तो मैं प्रभु को कहता था, धन्यवाद, ये अच्छे पैर आपने मुझे दिए हैं। Yeah, I just came, Lord, and I saw at Bandra station somebody with no leg, but you gave me two nice legs. I can walk, Lord. मैंने किसी को बैंड्रा स्टेशन पे देखा जिसके पैर भी नहीं थे, आपने मुझे पैर दिए, धन्यवाद। Let me give you the key. तो चाबी देता हूँ। When you feel envious about anything, जब आपको ये ईर्ष्या महसूस होती है ना कोई भी चीज को लेके, God is saying, count my blessings in your life. प्रभु आपसे कह रहे हैं मेरे आशीष जो तुम्हारे जीवन में उसे गिनना शुरू करो। शुरू कर. Start counting my blessings in your life. मेरे आशीष जो तुम्हारे जीवन में उसे गिनना शुरू करो। What you have, they don't have. जो तुम्हारे पास है दूसरों के पास नहीं है। And you know the biggest blessing? और सबसे बड़ा आशीष, I have a relationship with the Almighty God. मेरा रिश्ता है Come प्रभु on. के साथ। So what is the application? तो क्या करना है मैंने? क्या करना है? So whenever I feel envious, कि कभी भी मुझे जो ईर्ष्या महसूस होती है, put my eyes on the Lord. मेरी आंखें मैंने प्रभु के ऊपर लगानी है। Start counting all the good things that God has given me. अच्छी चीजें जो प्रभु ने मुझे दी है वो लिखना मैं शुरू कर देता हूँ। Look at your wife. पत्नी को देखो, Unbelievable. How can you have a wife like her? The third arrow is this is the common arrow but dangerous arrow. Genesis 39 verse 10. उत्पत्ति 39 में 10। So you know the story. He was in Potiphar's house, right? आप ये कहानी जानते हो कि यूसुफ पोटीफर के घर में था। Young, handsome, जवान था, हैंडसम था, hardworking, बहुत मेहनती, and the most important thing, सबसे जरूरी बात, God was with him. प्रभु उसके साथ थे। Okay, so what did this girl do? तो ये स्त्री ने क्या किया? Yeah, every day she's telling him, I want to sleep with you. रोज वो यूसुफ से कहती थी मेरे साथ संबंध करो। Yeah, now I just want to tell you, he is a slave, okay? मैं कहना चाहता हूँ वो गुलाम था In वहाँ that पर, house. वो घर में That गुलाम था। means he has been already purchased. इसका मतलब उसको खरीदा गया था। That means he is not paid for his job. इसका मतलब उसको अपने काम के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे। That means he cannot say anything. इसका मतलब वो कुछ कह भी नहीं सकता है। That means he has to only do what his master say. जो भी उसके स्वामी कहते वही करना पड़ता था। But over there, वहाँ पर there is this woman putting pressure on him. वहाँ पर स्त्री थी जो उसके ऊपर इतना दबाव डाल रही थी। And where was she hitting? और कहाँ पे वो वार कर रही थी? मन के ऊपर। Because every sin begins in the mind. क्योंकि हर एक जो पाप है मन में शुरू होता है। So the arrows were going every day. तो रोज वो तीर जा रहे थे उसके मन पे। But praise God, प्रभु की स्तुति हो, this man did not fall. ये व्यक्ति गिरा नहीं। Joseph had built a strong hold of purity in his mind. यूसुफ ने पवित्रता का एक मजबूत गढ़ अपने मन में बांध के रखा था। Yes, sir. This year, ये साल take time out to build strongholds of purity in your mind. समय निकालो और ये शुद्धता के मजबूत गढ़ आपके मन में बांधो। ठीक है, एक बार मारा गिर गया, दूसरे बार मारा गिर गया, अभी तो सीख जाओ। Now you say, okay, no problem. Next time when you come, I'm ready for you in the name of दूसरी बार जब Jesus. तुम आओगे मैं तैयार रहूंगा तुम्हारे लिए। Amen. See, don't be ashamed. शर्मिंदा मत हो, Yeah, don't be ashamed. शर्मिंदा मत हो। Yeah, okay. The enemy defeated you last time. Okay. शत्रु ने आपको हराया गए बार, ठीक है। Okay, no problem. Suppose you come to attack my fort. मानो तुम मेरे गढ़ के ऊपर आक्रमण करने आते हो, Okay, and you attack. और तुम आक्रमण करते हो, And somehow you weaken some of my walls. और कुछ मेरे दीवार में आप उसको कमजोर कर देते हो, And somehow I make you run away. और कैसे तो भी तुम उसके बाद भाग भी जाते हो। और भागने के बाद what will happen? क्या होगा? What will I do? मैं क्या करूंगा? Will I have a celebration and sleep off? उत्सव मना के सो जाऊंगा क्या? What will I do?
रिपेयर करेंगे हम। When God gives you peace, जब प्रभु आपको शांति देते हैं ना, it means it's time to build for you. इसका मतलब है समय है बांधने का। Don't think, अरे मेरे मन के ऊपर कोई भी अभी अटैक नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ नहीं। प्रभु कह रहा है, I'm giving you a time मैं तुम्हें when समय you दे can रहा हूँ। build a stronghold in your mind. तुम्हें समय दे रहा हूँ मजबूत गढ़ बांधने का तुम्हारे मन में, Come back. क्योंकि वो वापस आने वाला है। हर राजा को पता रहता है मेरा दुश्मन राजा वापस आएगा। वो शायद 3 महीने के बाद आए या 6 महीने के बाद आए या 9 महीने के बाद आएगा, लेकिन वो आने वाला है। लेकिन तब तुमने यू आर रेडी, आप तैयार हो, आप तैयार हो। दिस ईयर आई प्रे ये साल मेरी प्रार्थना है we will build strongholds of purity in our mind in Jesus name. हम हमारे मनों में शुद्धता के मजबूत गढ़ बांधेंगे यीशु के नाम में। Psalm 94 verse 22. But the Lord is my fortress. प्रभु मेरा मजबूत गढ़ है। So how do I build strongholds of purity in my mind? तो कैसे ये शुद्धता के एक मजबूत गढ़ मैं मेरे मन में बांध सकता हूँ? How? कैसे बांधना I'll है? give you 4 steps and I want you to work on it. Number मैं 1. 4 कदम आपको बताता हूँ, उसके ऊपर आप काम करो। पहली Number बात, 1. Get to know God's heart about purity. प्रभु क्या कहते हैं शुद्धता के बारे में, पहले वो जान लो। It's all in the Bible. सब बाइबल में है। If you want, you can go on our channel and you can see there are so many messages on purity. आप YouTube पे जाके हमारे जो मैसेजेस है वो पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। Number 2. दूसरा, First is get to know. पहला है जान लो। Number 2. दूसरा, Meditate. मनन करो। मनन करना है। Number 3. तीसरा, Holy Spirit is your helper. पवित्र आत्मा आपके मददगार है। And number 4. चौथा, If you still struggle big time, then get help from somebody. अगर आप बहुत ज्यादा अभी भी संघर्ष कर रहे हो तो किसी से मदद मांगो। और शर्माना नहीं है, क्योंकि जब किला टूटता है ना, सबको पता चलता है। If you have a weakness, ना, अगर go कोई to कमजोरी somebody है, who loves you will be able to help you. अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है, जाओ किसी के पास जो आपसे प्रेम करता है, जो आपकी मदद कर सकता है। For some of you, your greatest weakness is rejection. आप में से कुछ लोग के लिए आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है तिरस्कार। Yeah. For some of you, your greatest weakness is बुरा लगना. कुछ लोग के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है कि बुरा लग जाता है बार बार। खुश रहो, Amen. आनंदित रहो, Amen. आशीषित रहो, Amen. दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनो। Amen. यही जीवन है यीशु के नाम में। Amen. Yeah, number 4, the 4th arrow. चौथा तीर, Genesis 39 verse 19. उत्पत्ति 39 में 19। So Potiphar's wife came to her husband तो पोटीफर की पत्नी पोटीफर के पास आई and she said, और you know that slave you brought, he tried to rape me. और उसने कहा कि वो जो गुलाम तुम लेकर आए उसने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की। So Potiphar became so upset, he threw him in the prison. तो पोटीफर इतना गुस्सा हो गया कि उसने उसको जेल में डाल दिया। न्याय गलत हुआ है। गलत न्याय जब होता है ना, वो एक इट्स लाइक एन एरो, इट पियर्सेस थ्रू कॉजिंग बिग वुंड्स। ये जो अन्याय जब होता है ना, तो एक तीर के समान है और बहुत घाव लाता है। Yeah. Now some of you are in leadership position. आप में से कुछ लोग अगुवेपन के स्थान में हो। Listen to me. सुनो, A leader always has to bring justice. जो अगुवा होता है उसने हमेशा न्याय लाना है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। And it begins inside your family first. वो पहले आपके परिवार में शुरू होता है। Okay, let me just say this. There's a man called David. बाइबल में डेविड है, दाऊद है। God used him to gather the 12 tribes of Israel together, bring unity and rule over them. प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया कि इजराइल के 12 गोत्रों को इकट्ठा कर सके और उनके ऊपर राज कर सके। But when you look at his family, लेकिन जब उसके खुद के परिवार को देखते हो, he's a disaster. वो सब उसमें गलत था। See, outside you can be a hero. बाहर आप हीरो हो सकते हो, Inside your home, लेकिन आपके घर के अंदर what is it? क्या हो रहा है? When his daughter was raped by the step brother, जब उसकी बेटी का बलात्कार किया गया उसके ही दूसरे बेटे के द्वारा, yeah, the whole family was watching. सब पूरा परिवार देख रहा था। Bible says he got upset, he got angry, बाइबल में लिखा है वो गुस्सा हो गया, but there was no justice. लेकिन कोई न्याय नहीं दिया। This year, ये साल all of you who are listening to me, आप सब जो सुन रहे if हो, you are in a leadership position, अगर आप एक कोई अगुवेपन के स्थान में हो, you should learn आपने सीखना है to give justice. न्याय सही करना, न्याय सीखना है करना। Because one of the signs of a mature leader is to give justice. क्योंकि एक चिन्ह एक कोई परिपक्व अगुवे का ये है कि वो सही तरह से न्याय करता है। As God pushes you ahead, 2 Samuel 23 and verse 3. दूसरा सैमुएल 23 में 3, Many of you will take leadership roles जैसे this प्रभु year. आपको आगे धक्का देंगे, आप में से बहुत लोग अगुवे बनेंगे। Yeah.
Leadership means there are people who you will lead. अगुवेपन का मतलब है ऐसे लोग हैं तुम्हारे पीछे जिसकी अगुवाई तुम करते हो। Yeah, I'm not just talking about your home, मैं सिर्फ आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ, your work, आपका काम, your neighborhood. आपके पड़ोस में। You can have leadership wherever you go. अब जहाँ भी जा सकते हो अगुवापन वहां पर है। देखो अगुआ कौन होता है ना, जिसके ऊपर फल होता है। Amen. फल नहीं तो कोई अगुवाई नहीं कर सकता। A man with fruit in his life is identified by people. जिस व्यक्ति के जीवन में फल है वो पहचाना जाता है क्योंकि उसके पीछे लोग हैं। लोग नहीं, he will identify that he has fruit. लोग पहचानेंगे कि उसके अंदर फल है। Yeah. तो तू आगे जाएगा तो तेरे पीछे लोग आएंगे, क्यों आएंगे? फल है। How should you rule? कैसे राज करना है, शासन करना है? You should be just. न्यायी होना है And you should have fear of God. और प्रभु का भय होना है। How many of you have eaten vegetables without salt? कितने लोग ने ऐसी सब्जी खाई है जिसमें नमक नहीं है? Okay, how many of you have eaten food with the right amount of salt? कितने लोग ने खाना खाया जिसमें सही मात्रा है नमक की? So did you enjoy it? क्या आनंद लिया? Right? How many of you have eaten food with salt which is more? कितने लोग ने ऐसा खाना खाया जिसमें बहुत ज्यादा नमक है? Did you continue to eat that? क्या खाते रहे उसको? When you judge, जब आप न्याय करते हो ना, you should learn how much mercy to put inside. आपने सीखना है कि उसके अंदर कितनी दया जोड़नी है। You should learn how much mercy to put. आपने सीखना है वो न्याय के साथ कितनी दया जोड़नी है। Because in James chapter 2 and verse 13, क्योंकि याकूब 2 और 13 में लिखा है, if you want to see a good leader, अगर अच्छे अगुवे को देखना चाहते हो, see how much mercy he adds with justice. देखो कितनी दया वो जोड़ता है न्याय में। Yeah, because the Bible says if there is no mercy in your judgment, then when you stand, I stand before God, there will be no mercy. क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर तुम्हारे न्याय में कोई भी दया नहीं है तो जब तुम खड़े रहोगे प्रभु के सामने तो कोई दया नहीं मिलेगी। और हमको सबको प्रभु के पास से दया चाहिए। So how does a leader learn and grow? Do you know how? कैसे अगुवा सीखता है और बढ़ता है? He has to get wisdom from the Lord. प्रभु की How ओर much से mercy to add? प्रभु की ओर से बुद्धि उसने प्राप्त करनी है कि कितनी दया मैंने जोड़ना है इसमें। ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। सॉल्ट देखो, ज्यादा दिया खा नहीं सकते हो, कम दिया तो बोलेंगे थोड़ा और डालो, थोड़ा और, right? Have you heard? Have you heard when the judgment is given? Sometimes you say, अरे थोड़ा सा दया करने का, बराबर? Salt. I pray. प्रार्थना है। Every time you are a leader, one prayer should always be there. God, give me wisdom. एक अगुवे की प्रार्थना हमेशा ऐसी होनी चाहिए, प्रभु मुझे बुद्धि दो। Okay, last arrow, number 5. आखिरी तीर। Yeah. Genesis 40 verse 23. उत्पत्ति 40 में 23। Yeah. Okay, the story is over here. It's like this, you know. One day Joseph helped a man कहानी ऐसे है, यूसुफ ने एक दिन एक व्यक्ति की मदद की because he was always a helping man. क्योंकि वो हमेशा मदद करता रहता था। और जिसके पास फल है ना वो हमेशा मदद ही करते रहता है. Amen. This man he helped him and he said, when you go and meet the king, now please talk about me. तो यूसुफ ने उसकी मदद की और कहा कि जब तुम राजा को मिलो तो मेरे बारे में जरा बताना। Please, because I'm inside, not because of my problem. I did not do anything क्योंकि wrong. मैं कोई मेरी गलती के कारण मैं यहाँ पे नहीं हूँ। He forgot. और वो व्यक्ति भूल गया। So the moment other people forget जिस वक्त लोग भूल जाते हैं ना what they should do, उन्होंने जो आपके लिए करना चाहिए, you become disappointed. तो आप निराश हो जाते हो। Please talk to people what you expect from them. कृपया करके लोगों से बात करो, आपकी क्या अपेक्षा है उनसे। Suppose I come to work in your office. मानो मैं आपके ऑफिस में काम करना, So as a boss, you should tell me what you expect from me. तो एक बॉस होने के नाते आपने मुझे बताना है कि आप क्या अपेक्षा करते हो मुझसे। In relationships, रिश्तों में भी also you should learn to express your expectation. आपने सीखना है कि आपकी क्या अपेक्षा है वो जाहिर करना सीखना है। Express it, next step, discuss it. पहले जाहिर करो, फिर उसके बारे में चर्चा करो। चर्चा करो. And after you discuss it, you have to agree on it. चर्चा के बाद दोनों ने सहमत होना है। If you agree, अगर सहमत होते हैं then you can expect. उसके बाद तुम अपेक्षा कर सकते हो। आपको पता है बहुत सारे रिश्तों में क्या होता है ना, हमारे जो अपेक्षाएं हैं ना सब मन में रहते हैं, हम कभी बताते नहीं, और जब पूरे नहीं होते ना हम नाराज होते हैं और हम रिश्तों को काटते हैं। आप ये सोच के देखो कितने रिश्ते हमने काटे हैं क्योंकि हमने हमारे अपेक्षाओं को बताया ही नहीं है।
उसके बारे में चर्चा किया ही नहीं है, उसके बारे में हम निर्णय पर आए ही नहीं है। And we are expecting, no, but this should be done for me, this should be done. But it's all in your head, it's all in your mind. लेकिन हम सोच रहे कि नहीं, मेरे लिए करना चाहिए था, मेरे लिए होना चाहिए था, लेकिन ये सब हमारे मन में घूम रहा है। आना था, लेकिन आपने कभी बोला नहीं, चर्चा हुआ ही नहीं, अग्री हुआ ही नहीं। Psalm 62 verse 5. भजन संहिता 62 में 5। My hope and my expectations are God. मेरी आशा और अपेक्षा प्रभु से है, Because God never changes. क्योंकि प्रभु कभी भी बदलते नहीं है। मौसम बदलेंगे, समय बदलेगा, प्रभु बदलता नहीं है। Amen. He stays the same yesterday, today and forever. प्रभु हमेशा के लिए एक समान ही रहते हैं। As this whole thing is going on, तो जैसे ये सब हो रहा था, 5 arrows are hitting him. 5 ऐसे तीर उसको मार रहे हैं। So did he fall and die? क्या वो गिर के मर गया? Come here. Let me close. Genesis 49 verse 24. उत्पत्ति 49 में 24, उसके हाथ में धनुष है और वहां पर तीर है And there is strength और ताकत है and there is help from God. और प्रभु की ओर से मदद है उसके लिए। 2022. 2022, No matter how many arrows come, कितने भी तीर आने दो आपकी you ओर, will not die. आप मरोगे नहीं, You will not आप die. नहीं मरोगे, You will live. आप जियोगे, You will live. आप जियोगे। So what happened? क्या हुआ? So he has a bow उसके पास धनुष है and his arms are strong. और उसके बाजू मजबूत है, His arrow is placed and he can shoot it. तीर तैयार है And he can shoot it. और उसको भेज सकता है वो। Okay. What arrow did he use? कौन से तीर का इस्तेमाल उसने किया? Jesus actually spoke to me about this weapon which I'm going to talk to you. ये जो हथियार है ना, उसके बारे में यीशु ने मुझसे बात की And Jesus told me, और यीशु ने मुझे if कहा, you use this, अगर ये हथियार का इस्तेमाल करोगे, there's no demon कोई दुष्ट आत्मा, who can stand before you तुम्हारे- all the days of your life. कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह सकते, No demon. कोई भी नहीं। Romans 12:20. रोमियो 12 में 21, Do not let evil overcome you, उन्हें तो दुष्टता तुम्हारे ऊपर जय ना पाए, but लेकिन overcome evil दुष्टता के ऊपर तुम जय पाओ with good. भलाई के द्वारा। This year ये साल you have to shoot arrows. आपने भी तीर भेजने हैं। There is no man in this world who doesn't shoot an arrow. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोई ऐसे तीर भेजता नहीं है, But there are 2 kinds of arrows. लेकिन 2 प्रकार के तीर है, Kingdom of darkness अंधकार का राज्य और प्रभु के राज्य। and that's why Paul says, इसलिए पौलुस ने कहा, take that arrow of good. वो भलाई का तीर लो और मारो। This year ये साल in your quiver, आपके वो जो भी तीर रखने के स्थान में, बाकी है वो बाद में बात करें। One of the biggest weapon that you should have is the arrow of goodness. एक बड़ा हथियार जो तुम्हारे पास होना चाहिए वो है भलाई का तीर। So this year, do you shoot? Yeah. क्या sure. ये साल हमने Yeah. तीर मारना है? अच्छा, when Jesus was dying, there was जब यीशु मर रहे थे, पता है एक चोर था, you know what he said? क्या कहा उसने? Jesus, यीशु please remember me. मुझे भी याद रखना, Please save me. मुझे बचा लेना। Okay. What miracle he did in front of him? क्या चमत्कार यीशु ने किया Nothing. उसके सामने? He just sent some arrows. यीशु ने कुछ तीर भेजे। Father, forgive them, पिता उनको क्षमा करो, for they don't know what they वो do. नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। This year, ये साल arrows will fly. तीर तो उड़ेंगे, They will fly from you. आपकी ओर से भी जाएंगे, But your arrows are very powerful. लेकिन तुम्हारे जो तीर है बहुत सामर्थशाली है। They heal human relationships, रिश्तों में वो चंगाई लाते हैं, but they destroy the strongholds of the enemy. लेकिन शत्रु के मजबूत गढ़ का नाश करते हैं। There is no weapon more stronger than this weapon. ऐसा कोई हथियार नहीं, ये हथियार से ज्यादा मजबूत। When Jesus died, जब यीशु मरे, this is centurion down. एक सेनापति नीचे खड़ा था। When Jesus died, कैसे यीशु मरे? you know what the centurion said? Look here. सेनापति ने क्या कहा? You know what that centurion said? पता है उसने क्या कहा? Truly, he's the son of God. ये तो सच में परमेश्वर का बेटा था। क्या उसने लाजरस को जिलाया क्या? क्या हजारों को उसने ब्रेड खिलाया क्या? नहीं. He removed
that arrow of goodness, and he shot it at every person around him. वो भलाई का तीर निकालकर यीशु ने भेजा लोगों की ओर। Why miracles don't happen? क्यों चमत्कार नहीं होते? Because we are using the wrong arrows. क्योंकि हम गलत तीर का इस्तेमाल करते हैं। Why are we not seeing the hand of God? क्यों हम प्रभु का हाथ नहीं देख रहे? Wrong arrows. गलत तीर। But the moment you use the right arrows, लेकिन जिस वक्त सही तीर का इस्तेमाल करोगे, miracles will happen. चमत्कार होने लगेंगे। I want to tell you, मैं कहना चाहता हूँ, as you finish this year, because मेरे लिए तो खत्म हो गया है, जैसे ये साल समाप्त करो, मेरे लिए खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि I have decided कि मैंने निर्णय लिया है what arrows I want to use. कौन से तीर का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। I have decided to dominate darkness, मैंने निर्णय लिया है कि ये अंधकार के ऊपर मैं राज करूंगा, not man. मनुष्य के ऊपर नहीं। I will not dominate man. कोई मनुष्य के ऊपर राज नहीं I करूंगा, will dominate darkness. जो अंधकार है उसके ऊपर राज I करूंगा। will steal the treasures of darkness. जो अंधकार का खजाना है उसको मैं निकालूंगा बाहर।